وزیر اعظم کی زیر صدارت معاشی صورتحال، ایف بی آر کی آٹومیشن پر اجلاس۔ وزیر اعظم کی ایف بی آر کی مکمل ڈیجیٹلائزیشن اور آٹومیشن کے عمل کی فوری آغاز کی ہدایت۔ کہا معاشی صورتحال پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، ماضی میں جو ہو گیا اس سے سبق سیکھ کر آگے بڑھیں۔ مسلح افواج نے مینڈیٹ کے مطابق الیکشن کے لیے عوام کو محفوظ ماحول فراہم کیا۔ سیکیورٹی کے علاوہ انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہ تھا۔ کچھ عناصر سوشل میڈیا اور میڈیا پر مداخلت کے غیر مصدقہ الزامات لگا رہے ہیں جو قابل مذمت ہے۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں شرکاء کا اظہار خیال۔ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک اور انسٹاگرام میں تکنیکی خرابی دور ہونے کے بعد میٹا سروسز بحال ہونا شروع۔ دنیا بھر کے صارفین کے اکاؤنٹس اچانک خود بخود سائن آؤٹ ہو گئے تھے۔ وزیر اعظم حلف اٹھانے کے اگلے روز گوادر پہنچ گئے۔ طوفانی بارش سے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لیا۔ بارشوں سے نقصانات اور نکاسی آب پر بریفنگ دی گئی۔ متاثرین سے گفتگو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پہلی فرصت میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کے گھر ڈوب گئے ہیں، ہم اسلام آباد میں کس طرح بیٹھ سکتے ہیں؟ بارش متاثرین کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ شہباز شریف نے سیلاب متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کیا۔ جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کو 20 لاکھ، زخمیوں کو 5 لاکھ اور بے گھر ہونے والوں کو 7 لاکھ روپے دینے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم نے کہا، جب تک متاثرین گھروں میں آباد نہیں ہو جاتے چین سے نہیں بیٹھیں گے، یہاں کا دوبارہ دورہ کروں گا۔ پی ٹی آئی کا کسی بھی قسم کی مفاہمت سے انکار، قومی اسمبلی میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے قرارداد جمع کرا دی۔ اسد کیسر نے کہا، 9 مئی واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، ہمارا مینڈیٹ دوسروں میں بانٹنے والے الیکشن کمیشن کے تمام ارکان کو مستعفی ہو جانا چاہیے، اپنا حق چھیننے کے لیے قانونی جنگ لڑیں گے اور سڑکوں پر بھی نکلیں گے۔ شہباز شریف کو کسی صورت وزیر اعظم نہیں مانتے۔ عمر ایوب کا کہنا ہے، بانی پی ٹی آئی سمیت مرکزی قیادت جیل میں ہے، کارکنوں پر تشدد ہو رہا ہے، اس ماحول میں مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ علیمہ خان نے کہا، بانی پی ٹی آئی نے واضح کیا ہے کہ نظریے کی بنیاد پر کسی کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، لیکن ووٹ چوروں کے ساتھ مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ الیکشن کمیشن نے روکی گئی مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں میں تقسیم کرنا شروع کر دی۔ قومی اسمبلی میں خیبر پختونخوا سے 8 خواتین کی مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نون لیگ، جے یو آئی اور پی پی کی خواتین کو نشستیں دے گی۔ خیبر پختونخوا کی تینوں اقلیتی نشستیں بھی دیگر جماعتوں کو دے دی گئیں۔ قومی اسمبلی کی روکی گئی 3 اقلیتی نشستیں بھی بٹ گئیں۔ سندھ اسمبلی میں خواتین کی 1 نشست پیپلز پارٹی اور 1 ایم کیو ایم کو مل گئی۔ اقلیتی نشست پر پیپلز پارٹی سریندر ولاسائی رکن سندھ اسمبلی منتخب۔ نشستیں کوٹے کے حساب سے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ اراکین کو ملنا تھیں۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے 26 دن بعد فارم 45، 46، 48، 49 بھی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے۔ اتوار کے روز جو ہے خان نے پروٹیسٹ کی کال دی ہے۔ اس دفعہ پروٹیسٹ مینڈیٹ چھیننے کے ساتھ ساتھ جو اہم پہلو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کل کا انتہائی متنازع بنیادی انسانی حقوق کے خلاف دیا گیا فیصلہ ہے۔ مخصوص نشستیں نہ ملنے پر پی ٹی آئی کا اتوار کو احتجاج کا اعلان۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد شیر افضل مروت نے بتایا، بانی پی ٹی آئی نے پیغام دیا ہے، خیبر پختونخوا میں اتوار کو عوام تاریخی احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے، ایم این ایز اور ایم پی ایز مخالفین کو جھپیاں نہ ڈالیں، احتجاج صرف 15-20 ارکان کی ذمہ داری نہیں، سب مل کر کریں۔ علی محمد خان کہتے ہیں، سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے فیصلے پر قانون ہمارے ساتھ ہے، مینڈیٹ کا مسئلہ حل کیے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی۔ پیپلز پارٹی نے صدارتی الیکشن کے حوالے سے نمبر گیم پورا کر لیا۔ ذرائع کے مطابق آصف زرداری کو 345 الیکٹورل ووٹ کی یقین دہانی ہو چکی۔ ایم کیو ایم نے آصف زرداری کو ووٹ دینے کی یقین دہانی تاحال نہیں کرائی۔ بلاول بھٹو سے پیپلز پارٹی کی کمیٹی برائے صدارتی مہم کے اراکین کی ملاقات۔
कमेटी ने बताया, हमें नून लीग, काफ लीग, बलूचिस्तान अवामी पार्टी IPP की हिमायत हासिल हो गई। आसिफ जरदारी और महमूद अचकजई सदारती इंतखाब में आमने सामने होंगे। इसाक डार को वजीर खारजा बनाए जाने का इम्कान। निजी बैंक के CEO मोहम्मद औरंगजेब को मुशीर खजाना बनाया जाएगा। विफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत का अमल तेज। जराए का कहना है, दिफा का कलमदान ख्वाजा आसिफ को मिलेगा। अता तारड़ वजीर इत्तलात और राना सना को मुशीर दाखिला बनाए जाने पर गौर। आजम नजीर तारड़, तारिक फजल चौधरी, एहसन इकबाल काबीना का हिस्सा होंगे। अमीनुल हक, अलीम खान और चौधरी सालिक के नाम भी जेर गौर। खुर्रम दस्तगीर, तलाल चौधरी, अमीर मुकाम और सरदार यूसुफ को भी वजारत मिलेगी। इरफान सिद्दीकी, मुसद्दक मलिक, फवाद हसन फवाद, अहद चीमा, हनीफ अब्बासी, राना मशहूद, आबिद शेर अली, रियाज पीरजादा, नसीर सिद्धू, नौशीन इफ्तिखार और अनुशे रहमान को भी जिम्मेदारियां देने पर गौर। इदारों से जो बात होगी वो बानी PTI खुद करेंगे। अली अमीन गंडापुर वजारत आला का मनसब संभालने के बाद बानी PTI से मिलने अडयाला जेल पहुंचे। मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा, जल्द साबिक वज़ीर आज़म रिहा हो जाएंगे। मैंडेट चोरी करके वज़ीर आज़म बनने वाले शख्स की हल्फ बर्दारी में जाकर क्या आइन से गद्दारी करता? एक बार फिर 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। बानी PTI से मुलाकात में सूबाई काबीना के नाम भी फाइनल। जराए के मुताबिक मुजम्मिल असलम बतौर मुशीर खजाना खिदमात अंजाम देंगे। बैरिस्टर सैफ को मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बनाए जाने का इम्कान। अरशद अयूब, शकील खान, आकिबुल्ला खान, मोहम्मद सज्जाद, फजल हकीम वज़रा में शामिल होंगे। काबीना कल शाम 6:30 बजे हल्फ उठाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में PP वफ्द की मुलाकात। वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। आसिफ जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। शहबाज शरीफ ने कहा, वजीर आजम मुंतखब करने के लिए इत्तेहादी जमातों के एतमाद पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अवाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने खिदमत के लिए एक मरतबा फिर मौका दिया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल भुट्टो ने कहा, आए मिलकर इलेक्शन और जुडिशल रिफॉर्म्स पर काम करें। नरेंद्र मोदी की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। भारतीय वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी हम मनसब को हल्फ उठाने पर मुबारकबाद पेश की। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म और दुबई के हाकिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। नायब वज़ीर आज़म शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान ने भी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दी। अमरीका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुश्तरका मफादात आगे बढ़ाने का ख्वाहां। मैथ्यू मिलर का कहना है, पाकिस्तान के साथ देरीना शराकतदारी है। मुश्तरका मफादात आगे बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान को अमरीका के मफादात के लिए अहम समझते हैं। मरियम नवाज का वज़ीर आला मुंतखब होना पाकिस्तानी सियासत में अहम संग-ए-मील की हैसियत रखता है। ख़वातीन के लिए ऐसे अहम फैसलों से हमेशा खुशी होती है। पाकिस्तान का IMF के पास कर्ज के नए प्रोग्राम में जाने का फैसला। ज़राए वज़ारत खजाना का कहना है, IMF से बातचीत के लिए फौरी रुजू किया जाएगा। कर्ज का नया प्रोग्राम 6 से 8 अरब डॉलर्स का हो सकता है। कर्ज का नया प्रोग्राम IMF की कड़ी शराइत पर मिलने का इम्कान है। IMF के साथ मुज़ाकरात के लिए शेड्यूल तय किया जाएगा। ज़राए का कहना है, हुकूमत को बिजली गैस की कीमतों में इजाफे के मजीद सख्त फैसले करना होंगे। वजीर आजम ने मुआशी सूरत हाल पर आज फिर इजलास बुला लिया। एक तरफ कहते हैं कुछ बंद नहीं किया, दूसरी तरफ सब बंद पड़ा है। मुल्क इस तरह की बंदिश करके नहीं चलता है। PTA पावरफुल अथॉरिटी है। अगर आपने इंटरनेट बंद नहीं किया तो फिर मामला कौन चला रहा है? जमीनी हकायक समझे बगैर मुल्की हालात को ठीक नहीं किया जा सकता। माजरत के साथ कहते हैं, किसी को क्रश करके मुआशरा चलने वाला नहीं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स सर्विस की बंदिश के केस में पीटीए ने जवाब जमा करा दिया। वकील पीटीए ने कहा, वजारत दाखिला और दीगर इदारों ने सिक्योरिटी खदशात पर मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद की। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा, पहले आपने कहा 9 मई की वजह से इंटरनेट बंद किया था, आज के दिन तक इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा। जब तक हम जहनों में तफरीक खत्म करके आगे नहीं बढ़ सकते, उसका नाम टीवी पर चलेगा, उसका नाम टीवी पर नहीं चलेगा, ये सब खत्म करना होगा। जुल्फिकार भुट्टो सदारती रेफरेंस पर कल अदालत अपनी राय देगी। सुप्रीम कोर्ट ने राय सुनाने के लिए तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने 4 मार्च को राय महफूज की थी। कराची में एक और तालिब डकैती के दौरान कत्ल। लारेब को कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में मोबाइल फोन छीनने के दौरान गोली मारी गई। मकतूल के वालिद ने बताया, लारेब बीबीए का स्टूडेंट और अकाउंटिंग पर किताब लिख रहा था, जिसका डेटा मोबाइल फोन में था। लारेब की अगले साल शादी थी। हाई का कहना है, अब यही हल है कि नौजवान तालीम हासिल करें और मुल्क से चले जाएं। नौजवान की नमाज जनाजा अदा। कराची में रवा साल डकैती मज़ाहमत पर 33 शहरी जान से गए, 100 से ज्यादा जख्मी हुए। डीआईजी ईस्ट ने एसएचओ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया फराज को मुअत्तल कर दिया। वजीर आला सिंध का लारेब के कातिल फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। सिंध की अनोखी डिस्पेंसरी, जहां एक दिन भी काम नहीं हुआ। पीपी रहनुमा नवीद कमर ने टंडो मोहम्मद खान की डिस्पेंसरी का 2012 में इफ्तिताह किया था। डिस्पेंसरी ने कभी डॉक्टर या तिबी अमले का मुंह तक भी ना देखा। 12 साल में लोग खिड़कियां और दरवाजे तक निकाल कर ले गए। लाखों के खर्च से बनी डिस्पेंसरी खंडर बन गई है। IMF की शर्त पर 1 जुलाई से नई रजाकाराना पेंशन स्कीम लाने की तैयारी। नई भर्तियां रजाकाराना पेंशन स्कीम के तहत किए जाने का इम्कान। SECP ने पेंशन स्कीम तैयार कर ली। जराये का कहना है, स्कीम के तहत मुलाजमत की तब्दीली पर भी मुलाजमीन की पेंशन सहूलत जारी रहेगी। पुराने सरकारी मुलाजमीन की पेंशन बजट से ही दी जाएगी। मुलाजमीन रजामंदी से नई स्कीम में शामिल हो सकते हैं। SECP ने सरकारी और निजी शोबे में नई स्कीम्स का इतलाक करने की तजवीज दी है। आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हुए। 40 मकानात तबाह, 37 इमारतों को नुकसान पहुंचा। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आजाद कश्मीर ने नुकसानात की तफसील जारी कर दी। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों और लैंड स्लाइडिंग के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। खुंजराब चीन से सौसत बंदरगाह जाने वाले तिजारती काफिले को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। FWO के दस्तों ने गैर मुल्कियों समेत मुसाफिरों को तिबी इमदाद और खाना भी फराहम किया। बुरे एबर में 4 डेटा केबल्स कट गईं। दुनिया भर में इंटरनेट सर्विस मुतासर होने का इम्कान। हांगकांग में कायम HGC ग्लोबल कम्युनिकेशंस की केबल्स कटने की तस्दीक। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि ये आबी गुजरगाह हौसी हमला आवरों के निशाने पर है। केबल्स कटने से बुहरा एमर से गुजरने वाले डेटा ट्रैफिक का 25% मुतासिर हुआ। पाकिस्तान, भारत और मशरकी अफ्रीका के मुमालिक मुतासिर हो सकते हैं। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में 28 थाने, 28 में से 15 भी बिल्डिंग नहीं है। पहले उनको बिल्डिंग होनी चाहिए, प्रॉपर थाना होना चाहिए। गवर्नमेंट को जरूर देखना चाहिए कि अगर कहीं पर थाना है तो उसको ओन करें। हैदराबाद में थाने भी पुलिस के अपने नहीं। पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पर कब्जे करके थाने बना लिए। 28 में से 10 थाने अपनी इमारत से महरूम। पुलिस थाने मुख्तलिफ महकमों की जमीनों पर कायम किए गए। दूसरों की मिल्कियतों पर कायम थानों में कोई सहूलत नहीं। गजा में एक बार फिर सहूरी फौज ने इमदाद के मुंतजिर अफराद की कतार पर फायरिंग कर दी। मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। भूख और प्यास से अब तक 16 बच्चे जान की बाजी हार चुके। इजरायली फोर्सेस की गजा में बमबारी। 24 घंटे में 97 फलस्तीनी शहीद। 130 से ज्यादा जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक
शहीद फलस्तीनियों की तादाद 30,631 हो गई। 72,000 से ज्यादा जख्मी हैं। टीम जब भी सिलेक्ट होगी वो मेरिट पर सिलेक्ट होगी। कोई सूरत नहीं है कि किसी का कोई ग्रुप का, कोई लॉबिंग का, फिलहाल की मर्जी का, फिलहाल की मर्जी का, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं। इसी सूरत ये नहीं कहूँगा कि पैसे नहीं कमाने, पाकिस्तान को पहली प्रायोरिटी दे दें, उसको सेकंड प्रायोरिटी दें। टीम से सियासत को मुकम्मल खत्म करना है। पैसे कमाने से मना नहीं किया, लेकिन मुल्क को पहली तरजीह देना होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। इस्लामाबाद में कौमी खिलाड़ियों से खिताब में कहा, टीम मेरिट पर मुंतखब होगी। हारने का कोई मसला नहीं, मगर जिस तरह हालिया दौरों में शिकस्त हुई वैसा नहीं होना चाहिए। वेकअप कॉल है बॉसों के लिए। वो जब बने हैं तो क्या उन्होंने इनपुट नहीं लिया होगा? पहली स्पीच होगी प्लेयर्स के साथ, उन्होंने डायरेक्ट मैसेज दे दिया सियासत नहीं चलेगी। पिछले 1-1.5 साल से सुनते हुए आ रहे हैं एनओसी का इशू, नेशनल ड्यूटी या रिटायरमेंट ले रहे हैं, ये चीजें मेरे ख्याल से खत्म होनी चाहिए। चेयरमैन ने पहली मुलाकात में ही खिलाड़ियों को वेकअप कॉल दे दी। बासित अली की एयरवाई न्यूज की पीएसएल ट्रांसमिशन में गुफ्तगू, कहा मोहसिन नकवी ने बराह रास्त कह दिया अब सियासत नहीं चलेगी। कामरान अकमल बोले मामला संभालने के लिए मजबूत शख्स की ही जरूरत थी। पीएसएल का मकबूल शो हर लम्हा पुरजोश में। आज मिफ्ता इस्माइल बनेंगे मेहमान, खेलेंगे मासूमाना खेल। पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 205 रन्स का हदफ दे दिया। एचपीएल पीएसएल 9 में ज़ल्मी ने के कप्तान बाबर आजम और साइम अयूब ने 84 रन्स का उम्दा आगाज फराहम किया। साइम अयूब 46 रन्स बनाकर आउट हुए। कप्तान बाबर आजम ने 64 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली। हसीबुल्ला 31 और पवल 23 रन्स के साथ नमाया रहे। उसामा मीर ने 3 और क्रिस जॉर्डन ने 2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। एचबीएल पीएसएल सीजन 9 के प्लेऑफ मरहले में रसाई का मिशन। कराची किंग्स ने तगड़े कमबैक के लिए मैदान का रुख कर लिया। खिलाड़ियों ने इस्लामाबाद के क्लब ओवल क्रिकेट ग्राउंड में कोचेस की निगरानी में भरपूर प्रैक्टिस की। किंग्स अपने अगले मैच में कल कोयटा ग्लेडिएटर्स से टकराएंगे। भारत में किसानों का दिल्ली मार्च 21वें रोज भी जारी। किसान मुजाहिरीन ने 10 मार्च को मुल्क भर में रेल रोको तहरीक की कॉल दे दी। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी कहते हैं मोदी की पॉलिसी की वजह से भारत में पाकिस्तान से दोगुनी बेरोजगारी हो गई। बेटे की महंगी तरीन शादी करने वाले मुकेश अंबानी का दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में 11वां नंबर। शादी में शिरकत के लिए आने वाले मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स का चौथा और 5वां नंबर है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स ने दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात की सालाना फहरिस्त जारी कर दी। अमेज़न के बानी जेफ बेजोस $200 बिलियन की दौलत के साथ सरे फहरिस्त हैं। टेस्ला के बानी एलॉन मस्क $198 बिलियन के साथ दूसरे नंबर पर हैं। और फिल्म, टीवी और रेडियो के मायनाज फनकार मोहम्मद कबीर खान को मदाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। शानदार कारकर्दगी पर कबीर खान को सदारती अवार्ड समेत मुताद्दिद अवार्ड से नवाजा गया।